ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. એબીપી અસ્મિતાની ટીમ પહોંચી છે સુરતના સિટી લાઇટના સૂર્યા કોમ્પ્લેક્સમાં અને વિવિધ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી મહિલાઓની સમસ્યા જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો કે તેમણે કેવી રીતે લોકડાઉનનો સમય પસાર કર્યો. હવે તેઓ સરકાર પાસેથી શું અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે? આપ જણાવો, આપ કયા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છો? કેટલી મુશ્કેલી થઈ આટલા દિવસ? હું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એડવાઇઝર છું. મને આ પ્રોબ્લેમ થાય છે કે માર્કેટમાં લિક્વિડિટી નથી. તો લિક્વિડિટી નથી તો લોકો શું કરે છે, they are redeeming their mutual funds back. तो वो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं. ઉકેલ શું છે? શું થવું જોઈએ? શું થવું જોઈએ એમ તો હું ચાહું છું કે શેર માર્કેટ બધા બેલેન્સ થઈ જાય, તો શેર માર્કેટ ઓર ઇક્વિટી બરાબર થઈ જાય તો બધું બેલેન્સ માર્કેટ થઈ જાય તો લોકો પાસે લિક્વિડિટી આરામથી આવી જાય. એટલે હું ચાહું છું કે બધા શેર્સના ભાવ પાછા બળી જાય. હું રિક્વેસ્ટ કરું નરેન્દ્ર મોદીને કે શેર માર્કેટ बढ़ाવી દે. બિલકુલ શેર માર્કેટ ઉપર ધ્યાન આપે તેવી અપેક્ષાઓ અત્યારે મહિલાઓ કરી. આપ કયા વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છો અને શું અપેક્ષાઓ છે? કયા પ્રકારના રહ્યા આટલા દિવસ તમારા? હું ઘરેથી ડાયમંડનું બિઝનેસ કરું છું, તો એના કારણે મને પ્રોબ્લેમ તો આવી જ છે કે મારા ઓર્ડર કેન્સલ થઈ ગયા છે. હમણાં મેરેજ સિઝન બંધ થઈ ગઈ છે, એના કારણે પણ થોડી પ્રોબ્લેમ આવી છે. કારણ કે હમણાં લિક્વિડિટી કોઈની પાસે છે નહીં, તો એના કારણે બધી પ્રોબ્લેમ ચાલુ થઈ ગઈ છે ને આગળ પણ એ લાંબો રાસ્તો લાગે જ છે કે હમણાં નહીં થાય સેટ, હમણાં નહીં થાય એ બિઝનેસ. કારણ કે જે જીવન જરૂરિયાતની ચીજો છે તે જ વધારે હમણાં અગત્યની છે. ડાયમંડ અને ગોલ્ડનું લાસ્ટનું છે સેશન, એટલા માટે હમણાં થોડી પ્રોબ્લેમ. કારીગરો પણ પોતપોતાના ગામે જતા રહ્યા છે, તો સેટ થતાં હમણાં પણ લાગે છે કે 4-6 મહિના નીકળી જશે એવું લાગે છે. બિલકુલ અત્યારે થોડી રાહત મળી છે, તો આપના વ્યવસાયને સ્ટેબલ કરવાના કઈ રીતના પ્રયત્ન કરશો? લોકોને થોડું એડવાઇસ કરીશું કે ભાઈ આવો, કંઈ વાંધો નથી, થોડા ધીમે ધીમે પૈસા આપજો, પણ તમારી જે જીવન જરૂરિયાતની ચીજો છે ને જે તમને છે કે હમણાં છોકરાઓના મેરેજ છે ને એ છે, તો તમે તમારું સેટિંગ કરી લો થોડું. બિલકુલ જે રીતે શેર બજાર છે, ડાયમંડ વ્યવસાય છે, ફેશન વ્યવસાય સાથે પણ સંકળાયેલા છે, આપની કઈ રીતની મુશ્કેલીઓ રહી છે અને उकेल शोधी रहा छो एनो? बिल्कुल, हम लोग को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन के थ्रू भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है जहाँ पर बच्चे मार्केट में जाकर सीखते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग मार्केट में जाकर सीखते हैं, तो वो उन सब चीज़ों में बहुत तकलीफ आ रही है. और साथ के साथ ये समय था उन बच्चों का जब उनका प्लेसमेंट होता था. बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी, मुंबई से, सूरत से कंपनीज आती थी और वो उनको प्लेस करती थी, जो कि अब सभी कुछ रुकावट में है. अच्छा, ये दिक्कत आ रही है तो उसका उपाय क्या ढूंढ रहे हो आप? इतने दिन किस तरह से गुजरे आपके स्टूडेंट क्या कुछ फरियादें कर रहे हैं आपको? हम लोगों ने ऑनलाइन सेशंस करवाकर काफ़ी कुछ नॉलेज, जो भी एकेडमिक्स था, जो भी सिलेबस था, वो कंप्लीट कराने की कोशिश करी. लेकिन हाँ, फैशन में और इंटीरियर दोनों में ही. लेकिन क्योंकि उनके पास स्टेशनरी अवेलेबल नहीं थी, स्टेशनरी की सारी शॉप्स बंद थे, तो उनको जो कोई शीट्स बनानी होती थी या कलर्स करने होते थे या कोई भी ऐसी डिजाइनिंग करनी होती थी, तो उसके लिए उनको प्रैक्टिकल कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था. बट चूंकि अब थोड़ा सा लॉकडाउन में राहत भी मिली है, तो स्टेशनरी की शॉप्स वापस से खुली हुई हैं और कुछ कंपनीज हमको टारगेट भी कर रही हैं वापस कि वो ऑनलाइन इंटरव्यूज लेंगे बच्चों के और उससे उनका सिलेक्शन करेंगे. बिल्कुल, अभी पढ़ाई तो प्रॉब्लम हो रही, तो ऑनलाइन पढ़ाई हो उसके लिए क्या कुछ आयोजन किया आपकी ओर से? हमारा पूरा सेटअप रेडी है. हमारी पूरी टेक्निकल टीम ने अपना एक ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें हम मोबाइल के थ्रू बहुत इजीली हम पढ़ाई करा सकते हैं बच्चों को और सारी चीजें उनको विद इन अ टिप्स ऑफ अ मोबाइल दे विल गेट. બિલકુલ, અન્ય કેટલાક વ્યવસાયીઓ છે આપણી સાથે. તમે કઈ રીતે ઘર આટલા દિવસ રહ્યા છો? શું પ્રોબ્લેમ આવી તમને? प्रॉब्लम है कि फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स नहीं है, अवेलेबल नहीं थे स्टार्टिंग में, तो इम्यूनिटी लो हो सकती है. तो ये था कि वेजिटेबल वेंडर को हमने सोसाइटी में ही बुलाया, उससे लोगों को राहत मिल गई. तो प्रॉब्लम्स तो है, पर सॉल्यूशन हमें ही ढूंढना है. मोदी जी ने ये तो अच्छा किया है, लॉकडाउन करके कम से कम बीमारी का तो रोकथाम किया है, इसलिए हम उनके साथ हैं. બિલકુલ, મોદી સાથે છે. તમારો કયો વ્યવસાય છે અને કઈ રીતની પ્રોબ્લેમ રહી આટલા દિવસ? हूँ तो साधारण गृहिणी हूँ, लेकिन हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस, बट मेरी बहू जैसे अभी प्रेग्नेंट है.
अब मेरे लिए ये समस्या आ रही है, मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घबराती हूँ कि कैसे ले जाऊँ, कौन सी हॉस्पिटल ले जाऊँ। अभी सबसे बड़ी तकलीफ है, हर हॉस्पिटल में आ रही है। तो अभी सब ये समस्याओं को झेल रहे हैं, साथ में लॉकडाउन में जाने में तकलीफ, साथ में उसको अकेले भी भेज नहीं सकते हैं, साथ में 2 जन जा भी नहीं सकते हैं। ये सफ़र कर रहे हैं, जो हमने जो सफ़र किया है वो थोड़ा तकलीफ तो आई है, लेकिन अब आगे सोच रहे हैं शायद भगवान हमारी ये सब कुछ तकलीफों को आगे सुनते हुए इसको यहीं स्टॉप करे। हमारी यही एक मनोकामना है कि हम सब अभी अच्छे से रहें, जिस हिसाब से आज हमारी सोसाइटी अच्छे से है, भगवान करे सारा सब जन ही इसी से अच्छे से रहे, यही चाहते हैं। सारा उपाय આવે અન્ય વ્યવસાય કયા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છો આપ? टेक्सटाइल हस्बैंड है टेक्सटाइल, मैं हाउस वाइफ हूँ। જી તો ટેક્સટાઇલમાં કેટલી પ્રોબ્લેમો અત્યારે છે તમારા ઘરે? प्रॉब्लम ऐसा है कि अब जैसे हम सब कंज्यूमर्स है, हम ही बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई कुछ खरीदेगा नहीं, कोई कुछ खरीदेगा नहीं तो होलसेलर्स भी कुछ बेच नहीं पाएंगे, ना रिटेलर्स कुछ बना पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। ઉપાય શું શોધી રહ્યા છે આપના હસબન્ડ? अब जैसे मार्केट खुलेगा हम लोग बाहर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे तो वो लोग भी कुछ कमा पाएंगे। બિલકુલ માર્કેટ ખુલવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે। આપ જણાવો, આટલા દિવસો મહિલાઓ માટે ખૂબ જ કઠિન રહેતા હોય છે, તમારા સૌથી મોટા પ્રશ્નો કયા રહ્યા? हस्बैंड टेक्सटाइल मार्केट से है और हम लोग क्या है गृहिणी है, तो हम लोग बाहर जाते हैं सब्जी लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि कहीं भाई कोरोना सब्जी से बचना है कि छू दें तो घर पे आकर अच्छे से हाथ धोकर नहाना धोना पड़ता है, एकदम खूब डर लगता है बाहर जाते वक्त। और हस्बैंड भी बेचारे अभी टेक्सटाइल मार्केट रिंग रोड में है तो उसमें भी अब रेड जोन में आते हैं तो उनको भी काफ़ी घर पे है बेचारे, तो बड़ी प्रॉब्लम है। સમસ્યાઓ ઘણી બધી છે। તમે જણાવો કયા વ્યવસાય સાથે છો તમે? અને હાઉસવાઇફ છું, હા, મારા હસબન્ડ આડત કા કામ કરते हैं, આડતનું કામ છે એમને, તો પ્રોબ્લેમ તો થાય છે કે માર્કેટ જઈ નહીં શકતા, રિંગ રોડ ઉપર છે ઓફિસ અને મોટા 15 જણા છે અમે લોકો ઘરમાં, તો દિક્કત તો બહુ આવી છે। મારા ફાધર ઇન લોને લંગ્સની પ્રોબ્લેમ છે તો ડૉક્ટરને લઈ નહીં જઈ શકતા બોમ્બે, અને અમદાવાદમાં દવાઈ મંગાવી ફે તો મારો હસબન્ડ બાય રોડ ગયા હતા દવાઈ લેવા માટે। દિક્કત તો આવી રહી છે, મગર છે અમે સેટ કરી રહ્યા છે કે જવાનું નથી બહાર, અને બધી પ્રોબ્લેમ આવી રહી છે। ટેક્સટાઇલ વેપાર પણ અત્યારે કમજોર છે અને પરિવારમાં પણ અત્યારે લોકો બીમાર છે। તમારો કયો વ્યવસાય અને કઈ રીતની હેરાનગતિ? एक तो मेरा डायमंड का खुद का बिजनेस है घर से, और मेरे हस्बैंड का डिजिटल प्रिंटिंग की मशीन है, तो मशीन्स हमारी सारी खराब हो चुकी है, अभी उसका मेंटेनेंस है, सब बहुत लॉस इस चीज़ में होगा। और डायमंड का भी मेरा पेमेंट वगैरह सब जगह रुक गया है, कहीं से भी पेमेंट नहीं आ रहा है, और जो ऑर्डर है वो भी नहीं मैं दे पा रही हूँ उनको कंप्लीट करके, क्योंकि सब कुरियर सर्विस वगैरह सब वो बंद हो चुकी है। और बच्चों के भी एग्ज़ाम का मुझे प्रॉब्लम आ रहा है घर पे, सब ये सब प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। સોલ્યુશન क्या? सॉल्यूशन तो अब जैसे से सब ठीक होगा, अपने आप धीरे धीरे सॉल्यूशन अपने आप निकल, कोई मतलब कुरियर सर्विस चालू हो जाएगी तो मे बी बिजनेस वापस चालू हो जाएगा, और जब वो मार्केट सब खुलेगा तो वो सब उसमें मेंटेनेंस सब पूरा करके डिजिटल मशीन है वो सब वापस स्टार्ट होगी, फिर जो सब स्टॉक रखा है वो सब धीरे धीरे जब ट्रांसपोर्ट चालू होगा तो फिर सब સ્ટુડન્ટો પણ છે આપણી સાથે। સ્ટુડન્ટ આપ જણાવો કઈ રીતની મુશ્કેલીઓ છે વિદ્યાર્થીઓને? तो मैं बॉम्बे में पढ़ती थी और मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के आनी पड़ी। 3rd ईयर था तो फिर प्लेसमेंट्स कॉलेजेस में कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स, तो अब हमें जॉब नहीं मिलेगी। जो जिन लोगों को जॉब भी मिली थी उन्हें भी अब निकाल दिया कि अब हमारे पास कंपनी के लिए जॉब प्लेसमेंट्स नहीं है। और ऑनलाइन पढ़ाई हुई, बट इंटरनेट कनेक्शन के वजह से हमें बहुत सारा पढ़ाई मिस करना पड़ा, बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन पूरे टाइम नहीं मिलता, कभी कभार बंद हो जाता है, तो फिर काफ़ी पढ़ाई हमारी छूटी। एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, अब हमें ऐसे ही पास कर दिया गया। બિલકુલ આપની કઈ રીતની સમસ્યાઓ છે અને શું ઈચ્છી રહ્યા છો સરકાર પાસે? तो मैंने अभी 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड्स चल रही थी, जब ये कोरोना आया तो मेरी 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड्स बीच में ही रह गई है, तो ये मेरी 12th की बोर्ड्स की पढ़ाई भी बाकी है, और जो कॉलेजेस की एडमिशन्स थे, जो एंट्रेंस एग्जाम्स थी, वो भी अभी ये लोग ऑनलाइन ही ले रहे हैं, तो बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि कॉलेजेस अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रही है और उसमें टेस्ट लेना चाहती है, तो वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन और ऐसे लैपटॉप्स भी चाहिए रहते हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ पे टेस्ट दे सके। तो कॉलेजेस की डेट्स आती है कि टेस्ट होगी, हम मॉक टेस्ट देते हैं और फिर उसके बाद वो लोग पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि ऑल ओवर
ओवर इंडिया में काफी बच्चों को दिक्कतें आ रही है कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे ले, एंट्रेंस टेस्ट कैसे ले। तो अभी बोर्ड्स की एग्जाम के भी रिजल्ट्स आने में लेट हो जाएगा और जो कॉलेजेस के लिए एडमिशन्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, जो एंट्रेंस एग्जाम्स भी देनी है, उसमें भी बहुत लेट हो रहा है। બિલકુલ મુશ્કેલીઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. તમને કયા પ્રકારની મુશ્કેલીઓ છે, ઉકેલ શું? हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो अभी सब क्रेनें हमारी जाम हो गई हैं और स्पेशल मजदूरों का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी काम चालू हुआ है पर वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। हमारी 15 क्रेनों के ऊपर सिर्फ एक वर्कर्स है। ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये हम लोगों को लग रहा है दिवाली तक होने वाला भी नहीं है सोल्यूशन इसका। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मजदूरों वाली। કામદારો ગયા છે એટલે પ્રોબ્લેમ, હવે સમસ્યા વધવાની. आप क्या व्यवसाय साथ है? टेक्सटाइल। लाइक 2 महीने से ऑफिस बंद पड़े हैं तो एक्सपेंसेस हमारे सब चालू हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है घर पे ये सब कैरी ऑन करना, सब डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। सब कुछ मेड्स नहीं है, सब बच्चे घर पे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, तो सब बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं।